السلام علیکم دوستوں، روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستوں، آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر کے آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ جھوم بھی اٹھیں گے کہ صرف 1 دینار میں جنت خرید لی۔ جی ہاں دوستو، صرف 1 دینار میں جنت خرید لی۔ تو کیا اس کے پیچھے کی حقیقت آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو میری آپ سے بس یہی گزارش ہے، واقعے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستوں، ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جس کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ اس کے زمانے میں بہلول نام کے ایک بزرگ تھے، وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اس لیے ہارون رشید ان کا بہت احترام کیا کرتا تھا۔ ہارون رشید کی بیوی جن کا نام زبیدہ تھا، وہ بہت ہی نیک عورت تھی اور وہ عورت 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی اور 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ زبیدہ نے اپنے محل میں ایسی 1000 نوکرانیاں رکھی ہوئی تھی جو قرآن کی حافظہ تھیں اور قرآن کی تلاوت کے لیے ان سب کی ڈیوٹی الگ الگ شفٹ میں لگی ہوئی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ محل میں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی تھی اور اس کا محل قرآن کا گلشن لگتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے کہ ایک جگہ بزرگ دانا بہلول دانا کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ دیکھتے ہی اس نے سلام کیا تو دانا بہلول دانا نے جواب دیا اور بہلول دانا اس وقت مٹی کا گھر بنا رہے تھے۔ تو ہارون رشید نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول دانا نے جواب دیا کہ میں ریت میں گھر بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بہلول دانا نے جواب دیا جو اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ ہارون رشید نے پوچھا اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ اے اللہ کے بندے، اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ بہلول دانا نے جواب دیا صرف 1 دینار اور صرف 1 ہی دینار۔ ہارون رشید نے سوچا یہ ایک دیوانہ ہے، جانے کیا بڑبڑا رہا ہے، اس لیے اس بات پر دھیان نہیں دیا اور وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے زبیدہ خاتون آئی، انہوں نے بھی سلام کر کے یہی سوال پوچھے کیا کر رہے ہو، کس کے لیے یہ گھر بناتے ہو؟ تو بہلول دانا نے پھر وہی ان کو بھی جواب دیا جو اس کے گھر کے خارندے یعنی اس کے پتی کو دیا تھا، اور بہلول دانا نے کہا کہ جو اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ تو زبیدہ نے پوچھا کہ اس کی کتنی قیمت ہے؟ تو بہلول دانا نے 1 دینار بتایا۔ تو زبیدہ نے 1 دینار دے کر کہا کہ میرے لیے دعا کر دینا، اور پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ جنت میں زبیدہ کا محل۔ رات کو جب ہارون رشید سویا تو اس نے خواب میں جنت کے حسین منظر دیکھے، خوبصورت جھرنے، ہرے بھرے باغ اور اونچے اونچے خوشنما محل بھی تھے، اور ان محلوں میں ایک محل ایسا بھی تھا جس پر زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہارون رشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح میری بیوی کا گھر کون سا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ محل میں داخل ہوتا محل کے ایک چوکیدار نے اسے روک لیا۔ ہارون رشید نے کہا اس محل پر میری بیوی کا نام لکھا ہے، یہ میری بیوی کا ہے، اس لیے مجھے اس محل کے اندر جانا ہے۔ چوکیدار نے کہا نہیں، یہاں کا قانون الگ الگ ہوتا ہے،
और यहाँ जिसका नाम होता है उसी को अंदर जाने की इजाज़त होती है, इसके अलावा किसी और को नहीं। जब चौकीदार ने हारून रशीद के पीछे धक्का दिया तो हारून रशीद की नींद खुल गई और हारून रशीद जागने पर उसे यकीन हो गया था कि बहलूल दाना की दुआ जुबैदा के हक में बिल्कुल सही है और बहलूल दाना की दुआ कबूल हो गई और खुद पर अफसोस करने लगा कि मैं भी अपने लिए एक घर खरीद लेता हूँ, कितना अच्छा होता। और मैं अगर अपने लिए घर खरीद लेता तो कितना अच्छा होता। वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। सुबह आँख खुली तो उसने सोचा कि आज जरूर मैं दरिया के किनारे जाऊंगा और बहलूल दाना से दुआ करवा के अपने लिए जन्नत में एक मकान जरूर बनवाऊंगा। अगले दिन वो दरिया के किनारे बहलूल को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहा था कि उसने फिर बहलूल दाना को उसी तरह का मकान बनाते हुए देखा तो करीब जाकर सलाम किया और बहलूल दाना ने जवाब दिया। उसके बाद फिर वही सवाल शुरू हो गए। हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलूल दाना ने जवाब दिया, रेत में घर बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा, किसके लिए बना रहे हो? बहलूल दाना ने जवाब दिया, जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। हारून रशीद ने पूछा, इस घर की क्या कीमत है? बहलूल दाना ने जवाब दिया, इसकी घर की कीमत पूरी दुनिया की बादशाही है। बहलूल दाना की बात सुनकर हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन कल तो एक ही दिनार के बदले दे रहे थे और आज पूरी दुनिया की बादशाही मांग रहे हो। बहलूल दाना ने कहा, बादशाह सलामत, कल बिन देखे मामला था और आज देखा हुआ मामला है। कल बिन देखे सौदा था इसलिए सस्ता मिल रहा था और आज चूंकि जन्नत देख आए हो इसीलिए अब इसकी कीमत ज्यादा देनी पड़ेगी। हमारी मिसाल ऐसी ही है कि आज हमने अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बिन देखे माना था, इसलिए जन्नत बड़ी सस्ती है। लेकिन जब मौत के वक्त की आखिरत की निशानियां देख लेंगे तो फिर उसके बाद उसकी कीमत अदा नहीं कर सकोगे। और फिर हारून रशीद बहुत शर्मिंदा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला हमको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, इसी तरह का एक और छोटा सा वाक़या किताबों में नज़र आता है कि हज़रत सासा बिन नाजिया नाम के एक मशहूर सहाबी ने ज़मानाए जाहिलियत में तकरीबन 360 से ज़्यादा बच्चियों को ज़िंदा दफन होने से बचाया था। वो सहाबी खुद अपना वाक़या सुनाते हुए फरमाते हैं कि एक बार मेरी 2 जवान ऊँटनियाँ कहीं खो गईं तो मैं अपने एक कीमती ऊँट पर सवार होकर उन दोनों की तलाश में निकला। बहुत दूर जाकर एक सहारा मुझे मिला और मुझे वो दोनों ऊँटनियाँ मिल गईं। तो मैं उन्हें लेकर वापस लौट रहा था कि मुझे एक जगह 2 घर बने नजर आए। मैं पास गया तो वहाँ एक बूढ़े दादा बैठे मिले और मैं उनसे बातें करने लगा कि तभी सामने के घर से आवाज आई कि ए बूढ़े बाबा आपके घर एक बच्चे की पैदाइश हुई है। तो उन बूढ़े बाबा ने पूछा कि लड़का पैदा हुआ है या लड़की पैदा हुई है? तो जवाब मिला कि लड़की की पैदाइश हुई है। ये सुनते ही उस बूढ़े बाबा ने कहा कि उस लड़की को अभी
फौरन दफन कर दो, मुझे अपने घर लड़की नहीं चाहिए बल्कि लड़का चाहिए। चुनांच बूढ़े बाबा की ऐसी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए और मैंने उनसे कहा कि ए बूढ़े दादा, ए बूढ़े बाबा, आप उस लड़की को दफन ना करें बल्कि मुझे दे दें, मैं उसकी अच्छी परवरिश करूँगा। ये सुनकर उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि तुम मुझे उसके बदले में क्या दोगे, यानी मेरी लड़की के बदले में तुम मुझे क्या दोगे। तो मैंने कहा कि आप जो कुछ मांगेंगे मैं वो सब देने को तैयार हूँ। तो उस बूढ़े बाबा ने कहा कि ये अपनी दोनों जवान ऊँटनियाँ और ऊँट मुझे दे दो और उसके बदले में इस बच्ची को ले जाओ। ये सुनकर मैंने बगैर सोचे समझे वो सारे ऊँट उसके दादा के हवाले कर दिए और उस बच्ची को लेकर खुशी खुशी अपने घर आ गया। फिर उसके बाद इस्लाम आने तक मैंने तकरीबन 360 से ज़्यादा बच्चियों को इसी तरह जिंदा दफन होने से बचाया और हर बच्ची के बदले में मैंने 2 ऊँटनियाँ और एक जवान ऊँट दिया। एक बार उन सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या मुझे मेरी उन नेकियों का कोई बदला मिलेगा जो मैंने किया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, तुम्हें उन नेकियों का पूरा उज्र में दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। ये दोनों वाक़यात सुनने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको आगाह किया जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुनिया में नबी बनकर आने से पहले लोगों के क्या हालात थे। जैसे हिंदू मजहब में औरतों को सती होना पड़ता था, इसी तरह अरबों की तहजीब में लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नबी बनने से पहले औरतों की कोई भी इज्जत न थी। बाप के मरने पर बेटे अपनी माँ को ही बाजारों में जाकर बेच दिया करते थे और औरतों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था। हर महीने औरत के खास दिनों में उन्हें एक कोठरी में बंद कर दिया जाता था और उसके हाथों की छुई हुई हर चीज को हराम समझा जाता था और उन्हें खाना भी पैरों से लात मारकर कोठरी के बाहर से ही दे दिया जाता था। चुनांचे जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में नबी बनाकर भेजा गया तो अपने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों की इज्जत करना सिखाई और फरमाया कि दुनिया में एक औरत ही है कि जिसके कदमों तले अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत रख दी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े सिखाए और घटाटोक तारीकी से निकालकर लोगों को रोशनी की एक नई राह दिखाई। बाकी दोस्तों अगली वीडियो में बयान किया जाएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली वही कैसे नाजिल हुई और अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को पहली बार देखा तो इतना ज़्यादा क्यों डर गए कि जिस्म कांपने लगा। फिर हज़रत खदीजा ने आखिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखकर अपने सर से दुपट्टा क्यों हटाया। ये सभी बातें इंशाअल्लाह आपको अगली वीडियो में बहुत तफसील से बयान की जाएंगी। अल्लाहु अकबर। दोस्तों अगर ये वाक़या आपको पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। और अगर आप भी चाहते हैं कोई वाक़या हमारे चैनल से शेयर करवाना तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।
آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں اور آپ کو انبیاء کرام سے اور اولیاء کرام سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستوں پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اللہ آپ سب کا نگہبان۔